नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। मुत्तहदा अरब इमारात के वली अहद का दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म मोदी ने वफ्द सतह की बातचीत में हिस्सा लिया। यूएई और हिंदुस्तान के माबैन ताल्लुकात को नई जहत देने का अज़्म। एक वक्त आएगा कि मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का जम्मू में इंतखाबी जलसे से खिताब। राजौरी में पाकिस्तान से दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम बना दी गई। 2 अस्करियत पसंद हलाक। इलेक्शन के पेश नजर पूरी वादी में सख्त चौकसी। और मणिपुर में 16 महीने से जारी तशद्दुद पर काबू पाने में हुकूमतों की नाकामी पर अवाम शदीद बरहम। इम्फाल में ख्वातीन ने निकाली टॉर्च रैली। क़याम अमन के लिए जामे इक़दामात का मुतालबा। सुर्खियां आपने मुलाहिज़ा की और अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस के साबिक़ सदर और लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी अपने 3 रोज़ा अमरीकी दौरे पर टेक्सास पहुंच चुके हैं। यहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के तलबा से हिंदुस्तान की सियासत, मईशत और भारत जोड़ो यात्रा पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा, आरएसएस का मानना है कि हिंदुस्तान एक नज़रिया है और हमारा मानना है कि हिंदुस्तान नज़रियों की कसरत है। हमारा मानना है कि हर एक को उसमें हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए, ख्वाब देखने की इजाज़त होनी चाहिए और उन्हें ज़ात, पात, ज़बान, मज़हब, रिवायत या तारीख से क़तई नज़र जगह दी जानी चाहिए। Battle that is being fought in India. The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election, when millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. Because what I am saying to you, union of states, respect to languages, respect to religions, respect to traditions, respect to castes, this is all in the Constitution. Every single word that I have said to you is in the Constitution. The foundation of modern India is the Constitution. And what people understood in the election clearly, and I saw it happening, when I used to raise the Constitution like this, people understood what I was saying. They were saying that the BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories. And most importantly, what they understood was that anybody who is attacking the Constitution of India is also attacking our religious tradition. Right? And that is why in my first speech in Parliament, you must have noticed, when I described Abhay Mudra, the fact that this is a symbol of fearlessness and it is present in every single Indian religion. You can look, you go on the internet and you can see every single Indian religion. Guru Nanak Ji holds his hand like this. Shiva holds his hand like this. Every single Indian religion, the hand is a symbol of fearlessness. And when I was saying this, the BJP could not stand it. They don't understand.
and we are going to make them understand. You see, and the other thing that happened that was very beautiful, that in fact I was amazed that it happened so quickly, was that fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. So these are huge achievements, not of Rahul Gandhi or the Congress party. We are peripheral. These are huge achievements of the people of India who realized, of democracy, of the people of India who realized that we are not going to accept an attack on our constitution. We are not going to accept an attack on our religion. We are not going to accept an attack. बातचीत में जब उनसे भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इस यात्रा ने उनके सियासी नजरिए को पूरी तरह से तब्दील कर दिया है। इस यात्रा का मकसद हिंदुस्तानी सियासत में मोहब्बत को पेश करना था। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तानी सियासत में नफरत का माहौल है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मोहब्बत और भाईचारे की सियासत की शुरुआत हुई है। उनका कहना था कि इस पूरे सफ़र के दौरान उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, जिसमें सबसे अहम सीख ये थी कि सियासत में मोहब्बत के तस्वुर को नाफिज किया जा सकता है। The first question to ask is why were we walking 4,000 kilometers? Right? You know, it's what created the need for us to do this? And the reason is that all avenues of communication in India were shut. Every single avenue, no matter what we did, it was all shut. We spoke in Parliament, that's not televised. We go to the media, they don't pick up what we say. We even go with documents to the legal system, nothing happens. So, all our avenues were shut. And for a long time, we literally couldn't understand how to communicate. And then suddenly we hit upon the idea कि भाई अगर मीडिया आपको लोगों के पास नहीं ले जा रहा, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम आपको लोगों के पास नहीं ले जा रहा, तो फिर डायरेक्टली चले जाओ. And then what better way to go directly than to literally go walking across the country? And so that's what we did. And I must tell you, in the beginning itself, I had a little bit of a knee problem. So 3-4 days into it, I was like, "Ye kya kar diya?" I was like, you know, because you get up in the morning, I go running, and so you get up in the morning and you say, "Okay, I'm going to go run 10 kilometers," and you're like, "ठीक है," and then you get up in the morning and you say, "I got to walk 4,000." It's a completely different paradigm, you know. So there was moments of that, okay, this is quite a big thing. But it went surprisingly easy. It was not difficult at all. And it fundamentally changed the way I think about my work. I would say that it completely changed how I view politics, how I view our people, how I communicate with our people, how I listen to people, and not just me. There were many people involved in the yatra, and all of us. And to me, the most powerful thing that happened organically, on its own, we didn't actually do it, it just happened, was that we introduced, certainly for the first time in India, possibly for the first time in many, many countries, the idea of love in politics. And this seems strange, you know, it's a strange thing because you look at the political discourse in most countries and you will never find the word love in that discourse. It just doesn't exist anywhere.
You'll find hatred, you'll find anger, you'll find unfairness, you'll find corruption, you'll find all these words. But you will never find the word love in the language. And the Bharat Jodo Yatra actually introduced that idea into the Indian political system. And it has amazed me how that idea has worked. मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 2 रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली पहुँचे। वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल ने उनका इस्तकबाल किया। ये शेख खालिद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का हिंदुस्तान का पहला बाज़ाब्ता दौरा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वली अहद से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर वफूद सतह की मुलाकात भी रही, जिसमें बाहमी ताल्लुकात को नई जहत देने का अज़्म किया गया। याद रहे कि UAE के वली अहद वज़ीर आज़म मोदी की खुसूसी दावत पर हिंदुस्तान आए हैं। हिंदुस्तान और UAE ने बाहमी तिजारत, तालीम, सेहत, दिफा और दीगर उमूर पर अहम मुआहदे किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल केस की समाअत दोबारा शुरू की। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मगरबी बंगाल हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि FIR में कम से कम 14 घंटे की ताख़ीर हुई है। मामले की समाअत जारी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ गैर मुल्की शहरियों जैसा सलूक रवा रख रही है। उनका साथ ही ये भी कहना था कि हुकूमत हिंद का यकीन है कि वो पाकिस्तानी मकबूजा भारतीय शहरी ही हैं और वो दिन दूर नहीं जब वो भारत का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार करेंगे। राजनाथ सिंह रामबन में चुनावी रैली से खिताब कर रहे थे। वज़ीर दिफा ने कहा कि हुकूमत हिंद का यकीन है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोग भारतीय शहरी हैं और वो दिन दूर नहीं जब वहाँ के लोग खुद आगे आकर भारत का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार करेंगे। यहाँ के विकास को देखकर POK के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि POK ये फॉरेन लैंड है। मैं POK के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। POK के लोगों को हम अपना मानते हैं। आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी हुआ करती थी। अभी मैंने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है? कहा है अफजाल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि अफजाल गुरु को यदि फांसी नहीं होनी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब चाहता हूं। और ये लोग कहते हैं हम फिर से 370 को बहाल करेंगे। बहनों भाइयों, यहां पर 5 सालों में आपको जानकर खुशी होगी, शायद आंकड़ों की जानकारी आपको नहीं होगी, 40,000 की भर्तियां हम लोगों ने की है। 40,000 की भर्तियां की हैं। और हमारा एक बगल में पाक अधिकृत कश्मीर है POK। क्या बतलाऊं मैं POK के बारे में? बहनों भाइयों, यहां भी सरकार बनाइए। यहां के विकास को देखकर POK के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि POK ये फॉरेन लैंड है। मैं POK के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। POK के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। गुज़िश्ता रोज़ राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने के लिए BJP को मजबूर कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि कश्मीरियों के हुकूक को छीनने की BJP को इजाज़त नहीं दी जा सकती। आप देखना, मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, या ये स्टेटहुड देंगे
नहीं तो फिर अगली सरकार जो दिल्ली में आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उनका पहला काम होगा आपको स्टेटहुड देने का। और हम तब तक नहीं रुकने वाले, हम इन पर दबाव डालेंगे पार्लियामेंट में, यहां पर कि ये जो आपको स्टेटहुड से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जो पहली बार हुआ है, इसको रिवर्स करना है और आपको स्टेटहुड देना। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज शोपियां और विची में इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए पीडीपी हुकूमत पर शदीद तनकीद की और रियासती दर्जे की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया। उन्होंने पीडीपी पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसने जम्मू कश्मीर को तबाही के दाने पर पहुंचा दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हालिया बयान में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को रियासती दर्जे की बहाली के वादे पर सवालात उठाए हैं। उन्होंने याद दिलाया, ये इलेक्शन हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़कर कराया। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे ताकि रियासती दर्जा वापस हासिल किया जा सके। जम्मू कश्मीर के ज़िला राजौरी के नौशहरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाकर 2 मिलिटेंट्स को हलाक कर दिया गया, जबकि इलाके में तलाशी ऑपरेशन हुनूस जारी है। फौज ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा है कि महलूकीन की तहवील से जंगी सामान और असला व गोला बारूद बरामद किया गया है। फौज ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी फराहम करते हुए कहा कि मुमकिना दरअंदाजी की कोशिशों के मुतालिक इंटेलिजेंस एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से मौसूला इत्तलाआत पर फौज ने इतवार और पीर की दरमियानी शब को नौशहरा सेक्टर के लाम इलाके में ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया और जाए मौके से अब तक जंगी सामान समेत गोला बारूद बरामद किया गया। इलाके में वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी है। इस दौरान जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात की तैयारी के सिलसिले में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सरहदी इलाकों में किसी भी मशकूक सरगर्मी का पता लगाने के लिए चौकियों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। चौकियों में दाखिल होने या बाहर जाने से पहले गाड़ियों का मुकम्मल मुआयना किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस के मद्देनज़र सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं, जिसमें कि हमारी पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी जो है रेगुलर हमारी पेट्रोलिंग चल रही है, डे डोमिनेशन चल रहा है, नाकाज हमने एनहांस किए हैं, उन पे चेकिंग और फ्रिसिंग चल रही है। और इसके अलावा हम लोग रोड मार्चेस भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जो वोटर्स हैं वो फ्री हो के अपना मतदान उस दिन हम चाहते हैं कि वो आके करें, और ताकि बिना किसी खौफ और डर के वो सभी खुल के आएँ और भारी मात्रा में अपना मतदान करें। दूर दराज का इलाका सर, जैसा जंगल का इलाका है, उन इलाकों में किस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस उन इलाकों में भी हमारे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग हमारी चल रही है, उसमें हम आर्मी की हेल्प ले रहे हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेज जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं वो भी हम सब मिलके ज्वाइंटली इन एरियाज को भी डोमिनेशन कर रहे हैं ताकि किसी किस्म का भी कोई इंसिडेंट ना होने पाए। एक्स्ट्रा फोर्सेस भी सर इसमें डिप्लॉय? जी हाँ, एक्स्ट्रा फोर्सेज हमारे पास आई हैं, उनको भी हम लोग पूरे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं और सब मिलके हम लोग जितनी भी फोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं सारी मिलके हम पूरे एरिया को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। मणिपुर में ताज़ा तशद्दुद और हलाकतों के बाद एक बार फिर हालात अबतर हो गए हैं। मणिपुर में तशद्दुद पर काबू पाने में रियासती हुकूमत की नाकामी पर अवाम में शदीद गमो गुस्सा है। इस दौरान इम्फाल में ख़वातीन ने इस तशद्दुद के ख़िलाफ़ टॉर्च रैली निकाली। उन ख़वातीन का कहना था कि मणिपुर में नस्ली तशद्दुद को 16 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है, मगर मरकज़ी सरकार इस तशद्दुद पर काबू पाने में अभी तक नाकाम है। क्या है कि ये इतने सालों से यहाँ पे जो लड़ाई चल रही है, पहले तो छोटा मोटा लड़ाई समझ लिया हम लोग, अभी तो ये समझ नहीं पा रहे हैं छोटा मोटा लड़ाई नहीं है, ये पूरी इंडिया को जानती है। वो रिप्लाई नहीं कर रही है।
इंडिया गवर्नमेंट कोई रिप्लाई नहीं कर रही है। वो जुर्मवार को ढूंढ भी नहीं पा रही है, वो किस लिए कर वो उसका वजह क्या है और उसका सीक्रेट एजेंडा क्या है। अभी ड्रोन बॉम्बिंग जो आप बता रहे हैं, आप सुन रही है, ये तो दूसरे कंट्री की अलग अलग कंट्री जो वार है उसकी वार है। ये समझने के बाद भी ये लोग चुप क्यों रहे और ये गवर्नर जो है हमारे हक क्यों छीन रहे हैं, हमारे मिनिस्टर का हक क्यों छीन रही है, हमारे मिनिस्टर का हक क्यों छीन रही है। इंडिया गवर्नमेंट दे दो हमारे मिनिस्टर को उसका हक। हमारे स्टेट जो है उसने जो करना है वो हम करेंगे, अगर वो नहीं कर पाएगा तो हम पर छोड़ दे। हम हमारे पहले हमारे पहले की जिंदगी 1947 की बिफोर की जिंदगी जो हम पर दीजिए, हमने इंडिया में मर्ज किया था, उसके पहले की जिंदगी में हम पे वापस दीजिए, हम लड़ेंगे खुद, वो कुछ नहीं कर पाओगे। एहतजाज के एक अनोखे अमल में कोलकाता में रिक्शा वालों ने आरजी कार हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर की वैश्याना इस्मत दरी और कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया। याद रहे कि इस अंधोनाक वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। कोलकाता में रिक्शा चलाने वालों ने अपने गम और गुस्से का इजहार करते हुए मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। क्या मांग करेंगे? मैंने ये दुर्घटना हुआ जो बहुत खराब दुर्घटना हुआ। हाँ, वैसा दुर्घटना किसी जो होना ठीक नहीं है। मैंने उसका लिए मैंने काट देता, मार देता ठीक था, मगर उस तरह से बलात्कार और अति किया जो ठीक हम स्वभाव है। आज सभी हाथ रिक्शा चालक जो है आप लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, कितने कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग सुगिया स्ट्रीट से आए हुए हैं। ये जो शाम बाजार अर्जी कल में जो एक कांड हुआ है, तो एक कांड के लिए ये रेलिंग निकाला गया है, तो इसको इंसाफ होना चाहिए है, और इसी के लिए हम लोग रेलिंग निकाले हैं। इसका निर्णय होना चाहिए। सबको माँ बहन है कि सबको माँ बहन पढ़ने लिखने जा रहे हैं, वो कितने को जान बचाते थे, उनको जो कि इस तरीका को हत्या किया गया, तो और लोग को क्या किया जाएगा है। तो इसलिए हम लोग एकजुट हो करके हम लोग मिছিল निकाले हैं। ये मिছিল निकाल करके हम लोग निर्णय चाहते। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मुत्तहदा अरब इमारात के वली अहद का दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पुरतबाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म मोदी ने वफ्द सतह की बातचीत में हिस्सा लिया। यूएई और हिंदुस्तान के माबैन ताल्लुकात को नई जहत देने का अज़्म। एक वक्त आएगा कि मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का जम्मू में इंतखाबी जलसे से खिताब। राजौरी में पाकिस्तान से दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम बना दी गई। 2 अस्करियत पसंद हलाक। इलेक्शन के पेश नज़र पूरी वादी में सख्त चौकसी। और मणिपुर में 16 महीने से जारी तशद्दुद पर काबू पाने में हुकूमतों की नाकामी पर अवाम शदीद बरहम। इम्फाल में ख्वातीन ने निकाली टॉर्च रैली। क़याम अमन के लिए जामे इक़दामात का मुतालबा। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुँचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।